हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन एंड अब तक हम 5 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम एंड देन वी डिस्कस्ड मोमेंटम एंड द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, impulse, conservation of linear momentum and then we discussed inelastic collision and बहुत सारे examples हमने पिछले ही वीडियो में डिस्कस किए थे ऑन inelastic collision। तो आज हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज इलास्टिक कोलिजन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। सो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो पहले हम वन डायमेंशन में देखेंगे एंड देन विल सी इन टू डायमेंशन। So here you can see, here this is cart 1 having mass 1, here cart 2 mass 2. Now here initially the cart 2 was at rest, so its initial velocity is 0. Now the cart 1 was moving with an initial velocity of v0, and after head-to-head collision, and this is an elastic collision. So after the collision, what happens? The final velocity for the block 1 becomes v1f, and the final velocity for the second cart or the block, it becomes v2f. Now our aim is to find that what would be the final velocities of these two cart after collision. So since it is an elastic collision, so what we can use two things. First, the conservation of momentum, and second हम लोग यूज कर सकते हैं the conservation of kinetic energy. तो चलिए पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं। सो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और यहाँ पे सिस्टम क्या है, ये दोनों के दोनों ब्लॉक्स हमारे पास सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम। ओके, सो इनिशियल मोमेंटम ना, इसका तो मोमेंटम जीरो होगा इनिशियली क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 v0 इज इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सो अगर मैं सिस्टम कंसिडर, ये है हमारे पास सिस्टम, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका, m1 v1f प्लस m2 v2f, correct? This will be the final momentum. Similarly, we can apply the conservation of kinetic energy. So initial kinetic energy of the system will be equal to the final kinetic energy. So यहाँ पे अपने पास initial, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, initial kinetic energy कितनी होगी, half m1 v0 square is equals to the final kinetic energy of the system. So 1 over 2 m1 v1f का square plus 1 over 2 m2 v2f का square. So let this be the second equation and let this be the first equation. Now यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है। दो वेरिएबल कौन कौन से, जो हमें फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है ऑफ दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द टू वेरिएबल्स, अदर थिंग्स वी आर गिवन। सो इट्स सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल अलजेब्रा हम लोग यूज करेंगे एंड वी विल गोइंग टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द टू कार्ट। So I'm just writing the result. The result will be the final velocity for the first cart. This will be m1 minus m2 divided by m1 plus m2 multiplied with v0. And the final velocity for the second cart, it will be 2 times m1 divided by m1 plus m2 times v0. So these are very important results. You can remember if you like, and this one also. Okay. So in दो इक्वेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है ऑफ द कार्ट 1, it can be positive, it can be negative, or it can be zero. अब देखो पॉजिटिव कब होगी, व्हेन m1 इज ग्रेटर देन m2। नेगेटिव कब होगी, जब m2 बड़ा हो m1 से, एंड व्हेन इट विल गो टू जीरो, जब दोनों आपस में इक्वल हो जाए। but the velocity, the final velocity of the cart 2 will always be positive, it cannot be negative.
नाउ हेयर यहाँ पे हमारे पास 3 स्पेशल केसेस हैं. For this example, we have 3 special cases. Let's discuss those 3 special cases. So case 1, I'm writing here, it's a very important cases, and directly questions are asked on these special cases. So case 1. Case 1 we have when the mass of the cart M1 is equals to M2 is equals to M. Masses are equal for the cart. So what would be the final velocity for the cart 1? This would be, now here M1 and M2 are equal, correct? So M1, this would become 0. Now if you put M1 M2 as M here, you'll get 2M divided by 2M, which will cancel each other. You'll get V naught. So the final velocity we have equals to V naught. So basically the first object comes to rest and the second object move with the initial velocity of the first object. This is the special case. Now next special case we have special case 2, when M2 is very greater than M1. We can consider in comparison to M2, M1 is approximated to 0. Now if you find the final velocities in this case, so V1F, this would be, now here M2 is very greater, so M1 we have 0, this value goes to 0, this value is also 0, M2 and M2 will cancel, we'll get minus V naught, so this would be minus V naught, and the final velocity for the second object. Now here M1 is 0, so if this is 0, this whole term goes to 0, so the final velocity becomes 0 for the second case. Now here you might think that what can be the best example for this special case. Suppose you hit a ball on this vertical wall. So what happens? The mass of this ball as compared to the mass of this wall is very less. So when this ball hits on this wall, it rebounds with the same initial velocity, but the velocity, the final velocity of the wall becomes it always remains 0. So ये चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं, इस example से ये चीज़ हम समझ सकते हैं. Now one more special case we have, special case 3, when M1, when M1 is very high as compared to M2, we can say, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो M2 है वो approximated to 0 है as compared to M1, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है M1 की वैल्यू. तो अगर मैं ये चीज़ यहाँ पुट करूँ, मैं अगर M2 को 0 करूँ यहाँ पे, ये 0 हो जाता है एंड देन ये भी 0 हो जाता है, तो ऊपर नीचे M1 M1 बचेगा, तो वो आपस में कट जाएगा. बेसिकली वील गेट V1F इज इक्वल टू V naught. तो जो फाइनल velocity होगी for the first object V1F, this would be V naught. और अगर मैं final velocity देखूं for the second object, this will be, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, M2 is approximated to 0, so this value is 0. So M1 M1 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा 2 times V naught. तो अपने पास final velocity क्या आ जाएगी, 2 times V naught. So यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो पहला ऑब्जेक्ट था वो तो सेम स्पीड से या सेम वेलोसिटी से मूव करता रहा, बट जो सेकंड जो ऑब्जेक्ट है इट मूव्स विद ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ एज कंपेयर टू द इनिशियल वन. सो ये 3 स्पेशल केसेस हैं. अब एक एग्जांपल लेते हैं बेस्ड ऑन दिस स्पेशल केस. तो चलिए, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हाथी का बच्चा, इट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v naught. सो दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ना यहाँ पे आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये है मधुमक्खी है, बहुत ही हल्की से छोटा सा मास है. इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी. व्हेन दिस हाथी का बच्चा इट कोलाइड विद दिस, तब इनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या रही होगी आफ्टर द कोलिजन, हाथी की एंड द फ्लाई. सो हियर this is a special case. Here we can see that the mass M2 is approximated to 0. mass, अगर मैं इसकी इसका मास देखूं फ्लाई का as compared to the mass of the हाथी और एलिफेंट, this is equals to 0. now अगर मैं इक्वेशन यूज करूं ये वाली, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी for the elephant, this would be, now M2 goes to 0, here also M2 goes to 0. So
यहाँ क्या बचेगा, m1 डिवाइड बाई m1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा v0। एंड अगर मैं फाइनल वेलोसिटी देखूँ फॉर द मधुमक्खी, देखो यहाँ पे ये कुछ स्पीड v से जा रही होगी, तो वो कितनी रही होगी, देखो m2 0 हो गया, तो ये 0 हो गया है, तो 2m डिवाइड बाई m1, तो m1 कट जाएगा, बचेगा 2 टाइम्स v0, तो ये हो गया 2 टाइम्स v0। सो जो फाइनल स्पीड होगी मक्खी की वो हो जाएगी हमारे पास 2 टाइम्स v0। सो नो यहाँ पे आप एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि आफ्टर द कोलिजन द फ्लाई इज सेपरेटिंग द एलिफेंट विद अ स्पीड, देखो फाइनल स्पीड कितनी होगी 2v0, ये इसकी है इसकी मक्खी की। अच्छा इसकी स्पीड कितनी है एलिफेंट की, वो है v0, तो सेपरेशन स्पीड अगर मैं देखूं तो कितना है v0 है। और बिफोर द कोलिजन जो एलिफेंट अप्रोच कर रहा था मक्खी की तरफ, वो भी कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहा था, v0, करेक्ट। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द स्पीड ऑफ सेपरेशन आफ्टर अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इस पे हम काफी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स सी सम कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑन द इलास्टिक कोलिजन। So this is the beautiful example for the elastic collision and this device को हम बोलते हैं Newton's cradle। Now यहाँ पे आपको 5 बॉल दिख रही है ऑफ इक्वल मास, तीनों के पांचों के मास इक्वल हैं। हमने क्या किया, लेफ्ट साइड से एक बॉल को हमने रेस किया एंड देन रिलीज्ड। अब जब आप रिलीज करोगे तो दिस बॉल विल हिट टू दिस बॉल। तो फाइनली जब ये कोलिजन के बाद क्या आप क्या देखोगे, क्या ये चारों की चारों बॉल लेफ्ट की तरफ ऐसे रेस कर जाएंगी या केवल एक बॉल रेस करेगी इस तरफ, एक आखिरी वाली बॉल ऊपर रेस करेगी, क्या होगा। तो सोचो क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स लगाओ जो हमने इलास्टिक कोलिजन में पढ़े थे उसके हिसाब से सोच के देखो क्या होगा। सो आई होप यू ट्राइड। अब मैं दिखाता हूँ क्या हुआ होगा। सो आफ्टर कोलिजन ओनली द वन बॉल दैट इज टूवर्ड्स द राइट एक्सट्रीम की तरफ जो बॉल थी वो ऊपर की तरफ मूव हुई। अच्छा इसका रीजन क्या है, बट देखो हुआ क्या कि जब हमने इस बॉल को रिलीज किया, इस वाली बॉल को रिलीज किया, तो इसके जब ये बॉल यहाँ, तो कुछ मोमेंटम था इसके पास, मास टाइम्स वेलोसिटी। अच्छा इसका भी मास वही है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, करेक्ट। और ये इनिशियली ये रेस्ट पे थी और इसके पास इनिशियली इसकी स्पीड कितनी है, सपोज v है। तो जब इसके साथ कोलाइड करेगी तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखूं, इट्स ए स्पेशल केस। फर्स्ट पहला जो स्पेशल केस हमने पढ़ा था अभी वही है ये कि एक बॉल तो रेस्ट पे है और दूसरी बॉल कुछ स्पीड v से आई, तो हुआ क्या कि ये जो पहली वाली बॉल थी ये तो रेस्ट पे हो गई और जो सेकंड वाली बॉल है इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई v। अब जब ये इससे टकराएगी इसके नेक्स्ट वाली बॉल के साथ तो ये भी यही होगा, जब इससे टकराएगी तो ये क्या होगा, ये खुद रेस्ट पे आ जाएगी और इसको स्पीड दे देगी v। ऐसे ही इसको मिल जाएगी वेलोसिटी v। ऐसे जब इसको मिलेगी वेलोसिटी v तो इसके आगे तो कुछ है नहीं, एयर है, तो ये ऊपर लिफ्ट कर जाएगी टूवर्ड्स द राइट साइड। तो ये है, तो इसलिए केवल एक बॉल ऊपर उठती है, दोनों या चारों बॉल एक साथ नहीं उठती हैं। बट क्वेश्चन ये है कि अगर हम दो बॉल को लेके रिलीज करें एक साथ तब क्या होगा, तब क्या केवल इधर से दो बॉल उठेंगी या केवल एक ही बॉल उठेगी, सोचो क्या होगा। एंड ट्राई टू गिव दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ओके अच्छा एक चीज़ और मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर ये चारों बॉल आपस में कनेक्टेड होती, मतलब मैं इसको बीच में यहाँ ग्लू लगा दूँ, चिपका दूँ इनको, बीच में स्पेस ना रखूँ, बिल्कुल ग्लू से चिपका दूँ। अब अगर मैं इसको रिलीज करूँ तब क्या होगा, क्या चारों बॉल ऊपर उठेंगी या केवल आखिरी वाली बॉल उठेगी। देखो जब ये ग्लू हो गई है ना तब क्या होगा कि जो ये चारों की चारों बॉल ही, क्योंकि अब ये केवल चार बॉल नहीं है, ये सिंगल एक सिस्टम मान लो इसको आप, तो ये चारों की चारों बॉल ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, राइट साइड की तरफ मूव करेगी। अच्छा और जो एक क्वेश्चन मैंने पूछा था वो आप खुद सोचो कि अगर मैं दो बॉल को अगर मैं मूव करवाऊं तो क्या इधर से दोनों बॉल निकलेंगी या एक ही बॉल ऊपर उठेगी। सो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो देखो इलास्टिक कोलिजन में पता है दो चीज़ें होती हैं, एक तो टोटल मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है एंड सेकेंड जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द सिस्टम दैट इज ऑल्सो कंजर्व्ड। नाउ अगर हमें इन सिचुएशन में अगर हमें फाइनल स्पीड पता हो एक ऑब्जेक्ट की, जैसे कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इसकी इनिशियल स्पीड हमें दे रखी है, फाइनल स्पीड जो है वो 0 थी, एंड आफ्टर कोलिजन अगर हमें ये फाइनल स्पीड पता हो सेकंड या फर्स्ट या किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पता हो और कितने एंगल पे ये ट्रैवल किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये चीज़ हमें पता हो, तो हम ये बता पाएंगे
कि इसकी स्पीड कितनी रही होगी और ये कितने एंगल पे ये बॉल या ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया होगा। तो ये होता है इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल की तरफ से लूँ, तो देखो इनिशियल स्पीड अगर ये 1.50 मीटर पर सेकंड दे रखी है और हमारे पास अगर मैं मास ले लूँ इसका 7 kg ऑब्जेक्ट 1 का एंड ऑब्जेक्ट 2, ये भी मास दोनों का सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे क्या है ना, हेड टू हेड कोलिजन नहीं हो रही है। मतलब ये अगर मैं देखूँ, ये कोलिजन ऐसे हेड टू हेड नहीं हो रही है। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो ये कोलिजन कैसी हो रही है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और ये जब ये ऐसे ट्रेवल करता है तो होता क्या, आफ्टर कोलिजन पहले वाला ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर जाता है और ये वाला कोलिजन, ये वाला ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर जाता है आफ्टर कोलिजन। तो देखो, तो इसलिए 2 डायमेंशन का मतलब कि एक्स की तरफ भी मूव हो रहा है, वाई की तरफ भी मूव हो रहा है, इसलिए 2 डायमेंशन बोल रहे हैं इसको। केवल एक्स की तरफ होता है तो 1 डायमेंशन बोलते हैं, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं। ओके, तो अब हमें ये चीज़ ये रखिए कि फाइनल स्पीड इसकी इतनी हो जाती है और कितने एंगल से ट्रैवल किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, 66 डिग्री रिलेटिव टू द एक्स एक्सिस। ओके, ना हमारी इच्छा ये है कि हम ये बता पाएँ कि इसकी स्पीड कितनी थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के आई, ये कितना हो जाएगा, हाफ एम। अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखूँ सिस्टम की, ये अपने पास सिस्टम है, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखूँ तो हाफ एम 1v1 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो वी आई में लिख सकता हूँ, प्लस 1/2 m2 v2 की इनिशियल का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे v2 का जो इनिशियल है वो 0 है, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, तो मैं इसको 0 लिख सकता हूँ, इसको 0 कर सकता हूँ। तो अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखूँ तो वो आ जाएगा हाफ m1, हमें दे रखा है 7 kg, इसकी स्पीड है 1.50, इसको कर दो स्क्वायर, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम दिस विल बी 7.88 जूल्स। अब अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखूं, तो इस बार फाइनल काइनेटिक में क्या है कि इसके पास भी कुछ स्पीड है और इसके पास भी कुछ स्पीड है, तो एक को हम 0 इस बार नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। अच्छा, इसका मास कितना है, ऑब्जेक्ट 1 का वो था 7, तो 7 इंटू स्पीड हो गई है इसकी 0.610, इसका स्क्वायर प्लस हाफ। सेकेंड बॉडी का मास भी 7 ही है, बट इसकी स्पीड हमें नहीं पता है, तो v2f लिख देता हूँ फाइनल स्पीड और इसका स्क्वायर। तो देखो इनिशियल काइनेटिक और फाइनल काइनेटिक सेम होनी चाहिए, तो क्या मैं इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो क्या मैं v2 की वैल्यू ना निकाल ले जाऊं, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो फाइनल स्पीड आएगी फॉर द सेकेंड ऑब्जेक्ट, दिस वुड बी 1.37 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हमें एंगल भी बताना है कि ये कितने एंगल पे जो है ये मूव कर रहा है रिलेटिव टू द एक्स एक्सिस। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। अब मोमेंटम जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, हम एक्स डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में भी कंजर्व कर सकते हैं। तो आप जो चाहो उससे कर सकते हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ। तो इनिशियल में अगर देखूँ तो इनिशियली वाई डायरेक्शन में अब सिस्टम के पास कोई मोमेंटम है ही नहीं, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, दोनों ही बॉल। एक तो 0 पे है, ये वाली बॉल जो ये एक्स एक्स की तरफ मूव कर रही है, तो इनिशियल वाई की तरफ कोई मोमेंटम नहीं है। तो अगर मैं ये लिखूं कि जो फाइनल मोमेंटम है दिस विल बी इक्वल्स टू द इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम तो है ही नहीं, तो इसको मैं 0 लिख देता हूँ। अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या है, देखो फाइनल मोमेंटम अगर मैं देखूँ तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फाइनल मोमेंटम फॉर द बॉल, 2 बॉल्स। तो एक तो इसका वाई डायरेक्शन में देख रहा हूँ, तो इसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में क्या होगा, इस स्पीड का, सॉरी वेलोसिटी का, नॉट स्पीड, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा 0.610 साइन थीटा हो जाएगा। थीटा यहाँ पे क्या है 66 डिग्री। और अगर मैं सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपोनेंट देखूँ इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये कितना हो जाएगा v2f। और देखो ये थीटा है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा साइन थीटा, करेक्ट। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है। तो मास, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1 हमें दे रखा है 7, v1 हो जाएगा 0.610 साइन थीटा, क्योंकि हम वाई डायरेक्शन में लिख रहे हैं, ये चीज़ हमें वाई डायरेक्शन में कंजर्व कर रहे हैं। तो साइन थीटा ही 66 डिग्री प्लस, अच्छा ये जो है ये नेगेटिव वाई की तरफ है, तो मुझे यहाँ पे माइनस लिखना चाहिए, माइनस ये हो जाएगा m2 कितना है 7 इंटू v2f
साइन थीटा एंड वी टू एफ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वी टू एफ की वैल्यू आई थी यहाँ से हम 1.37, सो 1.37 साइन थीटा। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम, एंड फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है? इनिशियल मोमेंटम जो कि 0 है, तो इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो साइन थीटा होगा ये कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स 0.610 मल्टीप्लाइड विथ साइन 66 डिग्रीज डिवाइड बाय 7 टाइम्स 1.37, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से हम थीटा को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 24 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा आंसर एंगल का, कितने एंगल पे जो है सेकंड बॉल हमारी जो है मूव करी है। तो दीज आर द टू रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, और ऐसे हम सॉल्व करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन को। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको खुद से करना है। तो ये है एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, दिस इज एप्पल एंड हेयर दिस इज द ऑरेंज। आप एप्पल का मास ले लीजिए 0.13 kg एंड आप ऑरेंज का मास लेके चलिए 0.160 kg। तो इनिशियली क्या हुआ, ये एप्पल इस तरफ मूव कर रहा था विद दिस मच स्पीड एंड ये ऑरेंज इस तरफ मूव कर रहा है। एंड आफ्टर कोलिजन हुआ क्या कि जो ऑरेंज था इट वाज मूविंग विद दिस मच स्पीड एट दिस एंगल बिलो द एक्स एक्सिस, एंड वाई का ये जो एप्पल है इसकी हमें ना स्पीड पता है ना ही डायरेक्शन एंगल थीटा पता है। तो ये दोनों चीज़ हमें निकालनी है। तो ये एग्जांपल सिमिलर है जो अभी आप देख के आए हैं। आप सबसे पहले कंजर्व कीजिए काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से आप इसकी स्पीड निकाल ले जाएंगे, एप्पल की स्पीड कितनी होगी। नेक्स्ट आप मोमेंटम कंजर्व कीजिए इन ईदर डायरेक्शन। इजी ये रहेगा कि आप वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कीजिए, क्योंकि इनिशियली जो वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम था नहीं यहाँ पे, तो उसको तो आप डायरेक्टली 0 लिख दोगे, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम था नहीं इनिशियली। फाइनल कुछ होगा उसको इक्वेट कर दो 0 के, तो वहाँ से आपके पास ये एंगल थीटा आ जाएगा। तो ये आपको खुद से करना है। एंड विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, एंड इसी के साथ हमने कोलिजन जो टॉपिक था अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, इन इलास्टिक कोलिजन एंड इलास्टिक कोलिजन दोनों टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना इंपॉर्टेंट फिजिक्स में फोर्स है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।